Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Education Nama. Today we'll discuss about the type of semi-solid, liquid and gas gaseous forms. I hope you have seen the previous video related to the type of solid gaseous forms, and I hope you have gained some knowledge about the same. So let's start our today's topic in the form of some questionnaires. What are the semi-solid gaseous forms and their types? So if you look at the definition of the semi-solids, then generally this is written as the gaseous forms which contain both liquids as well as semi-solid, solids, semi-solid, right? Liquids plus solids, semi-solid. So this is the definition of semi-solid gaseous forms. So these gaseous forms are too soft in structure to qualify for solids, but too thick to be considered liquid. So as the definition indicates, this is in between these two gaseous forms, solids and liquids, right? So they are meant for topical application basically. So the first classification of the semi-solid gaseous forms contain the creams. So what are creams? So these are semi-solid emulsions, that is mixtures of oil and water. These are further subclassified into two types, oil in water type and the water in oil. If you look at the definition of oil in water creams, then these are composed of small droplets of oil dispersed in a continuous phase water, right? So oil in water is the creams wherein oil is as a dispersed phase and water is as a continuous phase. So cosmetically acceptable, they are less greasy and more easily washed off using water. So this is the beauty of oil in water creams. Secondly, we have water in oil creams. जैसा अभी हमने देखा कि ऑयल इन वाटर में ये डेफिनेशन है और वाटर इन ऑयल में जस्ट अपोजिट होगा. दीज आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड राइट इन ए कॉन्टिन्यूस ऑयली फेज. तो वाटर इन ऑयल क्रीम्स में जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो ऑयल होगा. ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता होता है बट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस इन द इंटरव्यू हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. वाटर इन ऑयल के केस में जो ऑयल है वो कॉन्टिन्यूस फेज में होगा. अब एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं वाटर इन ऑयल क्रीम्स के. वाटर इन ऑयल क्रीम्स आर मोर डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट, इन कंपैरिजन टू ऑयल इन वाटर. thirdly, water in oil creams are also more moisturizing, ठीक है, as they provide an oily barrier, क्योंकि इसमें जो continuous phase है वो oil है, which reduces water loss from the stratum corneum. stratum corneum जो है ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, स्किन की ऊपर की सबसे जो लेयर होती है, फर्स्ट जो लेयर होती है उसमें, और एक बैरियर का भी काम करता है. अगर हम ड्रग डिलीवरी के अकॉर्डिंग बात करें, सो दिस इज एक्टिंग एज ए बैरियर to the delivery of drugs towards the inner layer of the skin, the outermost layer of the skin, as indicated here, right. So this is the water in oil creams. So next formulation comes under the classification of semi-solid gaseous form is ointment. So ointment are semi-solid greasy preparation, right, for application to the skin. अब ये कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ऑइंटमेंट को? स्किन पे, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा. सो जहां तक बेस की बात है, ऑइंटमेंट हम जिससे बनाते हैं जो बेस यूज होगा वो यूजुअली एनहाइड्रस होता है और इमिसिबल होता है विद स्किन सिक्रीशंस. ऑइंटमेंट जो है वो इमोलिएंट्स की तौर पे भी यूज हो सकती हैं. अब हम देख लेते हैं इमोलिएंट्स क्या होता है. बेसिकली ये जो प्रिपरेशंस हैं ये यूज होती है मॉइस्चराइजर्स के तौर पे, और इन जनरल हम इसको कहते हैं सॉफ्टनर, ठीक है. तो ऑइंटमेंट का जो फंक्शंस है वो इमोलिएंट्स की तरह हो सकता है और बेसिकली ये सॉफ्टनर या फिर मॉइस्चराइजिंग करने के काम आते हैं. और इसके अलावा क्या हो सकता है, और डिजोल्व मेटामीन्स और डिजोल्व टू दी स्किन, ठीक है, ये यूज है ऑइंटमेंट के. नेक्स्ट डोसेज फॉर्म इज जेल. सो इन ए जेल, दिस पर्टिकुलर semi-solid form, liquid phase is constrained
विद इन ए 3D पॉलीमर मैट्रिक्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपली बात करें जेल्स की, पॉलीमर हम लेते हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, ऐसे सपोज ये हमने हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, उसकी चेन्स हम देख सकते हैं 2D में, ठीक है। तो जो ड्रग्स हैं वो मैट्रिक्स जो बन रही है ना पॉलीमर की, दूसरे कलर से हम एक बार देख लेते हैं, ग्रीन कलर से, जहां पे सॉरी ये जो है ना ग्रीन कलर, ये ड्रग है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बने हैं पॉलीमर की, यहाँ पे जो ड्रग है लोड हो जाती है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स की तरह होता है जो पॉलीमर की जो ये स्ट्रक्चर है, और ये हाइड्रोफिलिक पॉलीमर होता है, ठीक है। ये जो फाइनली फॉर्म करते हैं इनको हम जेल कह देते हैं, ठीक है। 3D पॉलीमर मैट्रिक्स ही है जो अभी मैंने रेड कलर से बनाया है, कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक गम। और ये बेसिकली हम इसमें सेलुलोज डेरिवेटिव जो रहते हैं पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल HPMC, वो हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेडिकेशन, ऑब्वियसली वी कैन यूज लुब्रिकेशन and some miscellaneous application like carrier for spermicidal agents to be used intravaginally, right। ये इसकी application है जेल की। Next comes the paste। अब paste क्या होती है, basically these are ointments, right, into with a high percentage of insoluble solid has been added। अब अगर हम differentiate करें ointment and paste को, तो paste में जो परसेंटेज होगी insoluble solids की वो हाई होगी in comparison to ointment। That is the basic difference between these two semi-solid dosage forms, right। This is an important point। The extraordinary amount of particulate matter stiffens the system। Obviously this is the reason कि stiff होते हैं ये जो paste है। It provide less heating, देखो ये important है, less heating and penetration than the ointment, right, because maybe there is a role of particle size in the paste because of the high percentage of insoluble solids into it। It make good protective barrier when placed on the skin। The solid they contain can absorb and thereby neutralize certain noxious chemicals before they ever reach the skin। So this is the again beauty of the paste if we are looking for the application of the same। This was all about the semi-solid dosage forms। Next comes the liquid dosage forms। So hope you have remember the previous lecture wherein we have classified the various various dosage forms in terms of solid, semi-solid and liquid। In the liquid dosage forms we have seen monophasic and biphasic liquid dosage form। So far monophasic liquid dosage forms are concerned, then these can be syrups, then solutions, elixirs followed by the mouthwashes। So syrups क्या होते हैं वो देख लेते हैं। It is concentrated aqueous solution of sugar। बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें शुगर मिलाई जाती है सिरप्स में, राइट। यूजुअली सुक्रोज, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, सुक्रोज इज यूज जनरली इन दी सिरप्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस इज 67%, राइट। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर वी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स, जिसमें हम मेडिकामेंट्स ऐड करते हैं, राइट। फ्लेवर सिरप्स आर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मास्किंग डिसएग्रीएबल टेस्ट। तो ये जब हमने नीड की बात की थी पिछली प्रेजेंटेशन में, अगर हम याद करें व्हाट इज द नीड ऑफ ए डोसेज फॉर्म, देन उसमें से था कि एक टेस्ट मास्किंग के भी काम आती है, राइट। नेक्स्ट कम्स द सॉल्यूशंस। दिस इज होमोजेनियस फेज प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग वन और मोर सॉल्यूशन इन ए सॉल्वेंट। बहुत ही बेसिक है सॉल्यूशंस, right। Then comes elixirs। These are the solutions that contain an alcohol and water base। Alcohol and water base, these are also known as hydroalcoholic base, right। Hydroalcoholic base added sugar and flavoring, for example Tylenol, commonly used for pediatric and elderly patient। यानी कि pediatrics मतलब children के लिए, and elderly means geriatric patients, right, who have difficulty in swallowing tablet or capsules। So elixirs जो हैं एक alternative dosage forms हैं for children and old age patients, right। Next comes the mouthwashes। ये similar होते हैं gargles के, ठीक है, माउथ वॉश करने के काम आते हैं, but are used for oral hygiene and to treat infections of the mouth, right। इनका थोड़ा सा medical point of view से importance है mouthwashes का in comparison to गर्गल्स। तो ये तो बात हुई अपने मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स की।
अगली जो फॉर्मुलेशन और डोसेज फॉर्म है वो है बाइफेजिक। बाइफेजिक में हमने देखा था इमल्शन एंड सस्पेंशन। The liquid which consists of two phases are known as biphasic liquid dosage forms and they are categorized or classified into these two, emulsion and suspension. इसकी थोड़ी हम डिटेलिंग देख लेंगे। In emulsion both the phases are available in liquid. देखो ये important point है, basic difference is both the phases are in liquid. However, when we look at the suspension liquid dosage form, then these are finally divided solid particles suspended in a liquid medium. यानी कि एक solid रहेगा और एक लिक्विड रहेगा। इसमें ये दो चीजें हैं, और जब हम बात करते हैं इमल्शंस की तो दोनों ही फेजेस लिक्विड में, राइट। इफ यू लुक एट द इमल्शंस देन दीज आर बाइफेजिक एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। तो इसमें एक कॉन्टिन्यूस फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। जब भी हम बात करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम की या प्री क्लिनिकल रिसर्च की, तो इमल्शन के बारे में जब बात होगी तो यहाँ ग्लोब्यूल्स बनते हैं, राइट, एंड दीज आर नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। एंड द लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस फेज। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इमल्शंस की। इसमें देख सकते हैं लिक्विड 1 वाटर है एंड लिक्विड 2 ऑयल है। हमने इनको इमल्सिफाइंग एजेंट्स की हेल्प से इमल्सिफाई किया एंड फाइनली वी हैव सम ड्रॉपलेट्स or the globules. You can see the globules here, right, and this is the continuous phase where the globules are wherein the globules are present, right. ये एक इमल्शन की पिक्टोरियल व्यू है। अब हम बात करें अगर इमल्शंस की टाइप्स की, तो इसमें सिंपल हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल में हमने देख लिया वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। Then secondly we have depending on the globules as I said in the previous slide. अगर हम प्री क्लिनिकल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका रोल आ जाता है माइक्रो इमल्शंस एंड द फाइन इमल्शंस। और भी अगर एडवांस्ड इमल्शंस की हम बात करते हैं तो स्पेशल टाइप होते हैं जिसको हम मल्टीपल इमल्शंस कहते हैं। W/O/W फॉलोड एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये दो टाइप्स होते हैं मल्टीपल इमल्शंस की। अब बात ये आती है कि इनमें से यूज कौन सा करते हैं सबसे ज्यादा। You always remember WOW, W-O-W, WOW, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली यूज इमल्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हमने देखा एक सॉलिड रहता है, एक लिक्विड रहता है, ठीक है, और इमल्शंस में दोनों लिक्विड थे। तो सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle with the aid of single or combination of suspending agents, ठीक है। वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं और इसमें सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं। Solid particles act as dispersed phase whereas liquid vehicle act as continuous phase. इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जब हम इमल्शन एक साइड लिख लें, इमल्शन में डिस्पर्स फेज क्या होता है और कॉन्टिन्यूस फेज क्या होता है, इन द सेम वे वी कैन राइट द सस्पेंशन आल्सो, ठीक है। इसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स फेज का काम करेंगे एंड जो लिक्विड व्हीकल है दैट इज एक्टिंग एज अ कॉन्टिन्यूस फेज। द एक्सटर्नल फेज दैट इज सस्पेंडिंग मीडियम इज जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंस मे बी एन ऑर्गेनिक और ऑयली लिक्विड फॉर नॉन ओरल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरल के केस में दिस इज प्रेफर्ड एंड फॉर नॉन ओरल यूज दिस कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज oily liquid. The particle size for non-oral suspension is so important to avoid grittiness to the skin. इससे इरिटेशन हो सकती है, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो पार्टिकल साइज इन टर्म्स ऑफ ग्रिटिंगनेस इज an important parameter when we are looking for the development of suspensions, right? So this is the pictorial view of suspension, you can see here, and the last comes the gas, right? तो गैस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्पेसिफिक डिसीजेज में यूज होता है एज आई वी डिस्कस इन द प्रीवियस presentation. Inhalations, this is an important route of administration so far tuberculosis treatment is concerned, or in general we can say the lung disorders are concerned. So these are finally powdered drug substances solutions, suspension of drug substances solutions, and the suspension of drug substances administered by the nasal and inhale जो हम कर सकते हैं वो nasal और oral respiratory tract से कर सकते हैं, ठीक है। ये गैसेस का टाइप रहता है इनहेलेशंस। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही एस्टेलिन एक जो है
प्रोडक्ट है मार्केट में, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए होता है वो डिवाइस अस्टेलिन, तो उसको भी वो वैसे दिखता है कुछ कुछ, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनहेलेशन का, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, राइट, ना कि एक्सहेल, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तब हमने एक्चुएटर दबाना होता है, यहाँ पे ये जो है ना ये ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइस है। तो जब हमने इनहेल करना है तो हम प्रेस करेंगे एक्चुएटर ताकि डोज रिलीज हो, ठीक है। इसके अलावा और भी दूसरी डिवाइसेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं इनहेलेशन पर्पज से। तो जहां तक नेजल और ओरल की बात है, तो इनहेलेशन जो है ये दो तरीके से हो सकता है, एक नेजल से और एक ओरल से। ओरल को हमने फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब हम लोअर की बात करते हैं तो ये डीप लंग डिलीवरी की बात होती है, इसमें डीप लंग डिलीवरी की, ठीक है। अपर में ये यहाँ पे पार्टिकल साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, डेंसिटी का रोल रहेगा, खैर वो अलग बात है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इनहेलेशन जो रहता है दो तरीके से कर सकते हैं। एक एरोसोल स्प्रेस रहते हैं, ठीक है। Several different types of pharmaceutical products may be packaged in a pressurized dispenser known as aerosols. It is used as surface disinfectants. देखो ये एक एप्लीकेशन और हो सकती है aerosol sprays की, surface disinfectants in case of wound और burn, dressing, relieve irritation of bites. ये अलग अलग इसके यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे लंग डिलीवरी में हम इसका यूज करते हैं। पिक्टोरियल व्यू है एरोसोल का, ठीक है। ये पाइप है, ये कैप्सूल है, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो कैन है, ये वॉल्व है जिसके थ्रू यहाँ से फॉर्मुलेशन बाहर आती है, और ये एक्चुएटर है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। प्रोपेलेंट हम इसमें यूज करते हैं, प्रोपेलेंट की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसमें एक जो इशू था एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसमें भी इसका क्वेश्चन रेज हुआ था, तो इसके रिप्लेसमेंट की बात हुई, क्योंकि एनवायरमेंट को जो है एनवायरमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, राइट। तो एरोसोल स्प्रेज जो हैं that comes under the classification of gas dosage forms, right. I hope you have gained some information onto the semi-solid and liquid dosage forms followed by the gas dosage forms. ये दोनों लेक्चर्स जो अभी बात की है इसके बारे में, और द प्रीवियस लेक्चर्स रिलेटेड टू दी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, तो बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि इन दोनों लेक्चर्स पे जो है नेक्स्ट जो पार्ट्स रहेंगे डिस्कशन के, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ वेरियस डोसेज फॉर्म, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ वेरियस डोसेज फॉर्म्स, राइट। So thank you so much for being with us and watching the video. Thank you so much again.